हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? नाउ इन दिस सेशन टुडे आई एम गोइंग टू discuss the next part of this orthogonal machining operation. In the previous video you have seen how to draw the merchant circle and the expression of the cutting power as well as the expression of cutting force there, right? And we have also seen in the previous lecture how many forces are there in orthogonal machining. The force between chip and tool, the force between tool and workpiece, and the force between the shear plane, that is between the chip and the uncut chip, that is chip and the workpiece. So therefore this is how we have discussed all these six forces in the orthogonal machining operation. Now we know that we can measure the forces, that is your cutting force and thrust force. So as we can measure these two forces, so with these measured forces, it will always given to you in the problems in the numerical, and with these measured forces you have to calculate other four forces, that is frictional force, normal force, and the forces on the shear plane, that is shear force and normal force on the shear plane. So today I am going to discuss how to find out the other four forces with the help of cutting force and thrust force. Okay, so see how can we find it out. Force relation, in this chapter we are going to find out the relation for between other forces. So force relation we are going to discuss in this. See, force relations. Force relations. This is very important. Every year in GATE you will expect one or two problem from this force relations. Okay. Now, so we will find a relation with the help of this merchant circle. So now I am showing you the merchant circle. See the merchant circle which we have seen in the previous lecture. See, this was our merchant circle. ये हमारा merchant circle है. Okay. This was our merchant circle, right? So in this merchant circle, actually we know this. See, we know cutting force, this FC, and we know this thrust force. So with the help of this cutting force and thrust force, we have to find first, that is your shear force and normal force, Fn, right? So now can you tell me, shear force, this is the shear force what? If you see here in this figure, this is the shear force, this is the shear force acting on this shear plane, right? In this plane, the plane which is in contact with the uncut chip. So do you know the concept of shear forces? I am showing you. See, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सपोज अगर ये आपका एक shear plane है मान लो, तो ये आपका ये इस तरह का शेप कैसे होगा? देखो, ये तुम्हारा एक shear plane है, तो अगर तुम इस पे एक फोर्स लगाओगे, यहाँ पे एक फोर्स इधर लगाओगे इस तरह, ठीक है? तो ऊपर वाले पे फोर्स अगर इधर लगेगा तो नीचे वाले पे फोर्स इधर लगेगा. तो ये तुम्हारा एक, मान लो मैं ऐसा दिखा रहा हूं, तो एक ये तुम्हारा एक फोर्स तुम लगा रहे हो, तो ये तुम्हारा एक नया ज्योमेट्री ले लेगा, इस तरह का एक नया शेप. ये इस तरह का एक नया शेप ले लेगा हमारा, राइट? एक नया इस तरह का आ जाएगा. मतलब कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है ना? तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये एक हमारा ये डिस्टॉर्ट हो रहा है, ये शेयर एंगल है हमारा. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर ये शेयर फोर्स इस पर, ये शेयर फोर्स का डायरेक्शन, शेयर फोर्स का डायरेक्शन अगर ये जो हमारा ये जो प्लेन है जो हमारा कांटेक्ट में है किससे, वर्कपीस से, उस पर अगर इस डायरेक्शन में है, राइट हैंड साइड में, तो चिप पे शेयर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट हैंड. ये जो मैंने बनाया, सॉरी, ये जो मैं शेयर फोर्स का डायरेक्शन बनाया किस पे बनाया? चिप पे. कि चिप हमारा क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये जो शेयर फोर्स है ये हमारा चिप पर लग रहा है. तो वर्कपीस पे किधर लगेगा? इस पे. अगर इधर लग रहा है तो वर्कपीस पे इधर लगेगा, अपोजिट. तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए. तो अपन कभी कभी आप मर्चेंट सर्कल में देखोगे शेयर फोर्स का डायरेक्शन इस साइड भी रहेगा, एफएस. तो उससे घबराने की बात नहीं है. अगर शेयर फोर्स का डायरेक्शन राइट हैंड साइड में है तो ये कहने का मतलब है ये चिप पर लग रहा है शेयर फोर्स, ठीक है? और अगर ये शेयर फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब वो वर्कपीस पे लग रहा है, ठीक है? तभी वो क्या होगा? शेयर ऑफ होगा ना. शेयर प्लेन कब बनेगा? जब दोनों सरफेस पे एक फोर्स लगा दोगे ना, ये एक इधर एक इधर एक इधर, तभी बनेगा ना ये एफ, ये एफ. तो एक का डायरेक्शन इधर होगा और एक का डायरेक्शन इधर होगा. बात समझ में आ रही है? तो ये यहाँ पे जो एफ शेयर फोर्स है ये हमारा शेयर प्लेन पे है. किस शेयर प्लेन पे है? वो शेयर प्लेन जो किसके कांटेक्ट में? चिप के कांटेक्ट में.
तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, तो डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चिप पे जो होगा वो हमेशा राइट साइड में लगेगा, ये पिक्चर क्लियर रखना, ठीक है। कभी कभी वो वर्क पीस पे बना के उधर मर्चेंट सर्कल में, मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी कभी आपको दिखेगा कि कुछ ऑथर ऐसा दिखाएंगे शियर फोर्स इस तरह का, तो वो ये बोलेंगे कि ये जो मैं शियर फोर्स बना रहा हूँ ये किस पे बना रहा हूँ, ये वर्क पीस पे बना रहा हूँ मैं चिप पे नहीं बना रहा हूँ। चिप पे तो इधर ही लगेगा, अगर चिप पे अगर उल्टा बना दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि चिप पे फिर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ऐसा भी बना रह सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमें देखो, हमें निकालना है कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स दिया हुआ, इसके मदद से ये एफ एस निकालना है और एफ एन। तो मैं एक कंस्ट्रक्शन, मैं इस पार्ट को बस उठा रहा हूँ, इतने पार्ट को बस उठा रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ अभी, फ्रिक्शन को और नॉर्मल को मैं छोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ इस दोनों को मैं उठा रहा हूँ, ये एक इस दो ट्रायंगल को, मतलब आई एम स्टार्टिंग विद ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी, सिर्फ इसी दो ट्रायंगल को, और ये मेरा ये, ठीक है। तो देखो इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो फोर्स रिलेशन जो पहला अपन देखने जा रहे हैं, तो हमारा क्या था, एक तो येलो कलर का हमारा ये था टूल, तो ये बना दो टूल, देखो ये था हमारा टूल है। तो अब ये एक टूल हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे तुम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, देख लो इसको किस कलर से मैं दिखाया हूं, मैं उसी को दिखा दे रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं। ब्लू कलर, तो ब्लू कलर से अगर आप देखोगे तो एक तो आपका आ जाएगा कटिंग फोर्स यहाँ पे, एक यहाँ पे आएगा आपका कटिंग फोर्स हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो ये तुम्हारा आ गया कटिंग फोर्स, ठीक है। तो ये आ गया कटिंग फोर्स, और ये परपेंडिकुलर ये आएगा थ्रस्ट फोर्स, आएगा बोलो, तो ये आ गया थ्रस्ट फोर्स। तो ये था तुम्हारा कटिंग फोर्स एफ टी, और ये था तुम्हारा थ्रस्ट फोर्स। चलो चलो वेरी गुड। अच्छा, एक रिजल्टेंट था हमारा, ये था हमारा रिजल्टेंट आर, यही था ना। तो रिजल्टेंट को कुछ अलग कलर से दिखाया था मैंने, रेड से, तो रेड से दिखा दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ये था रिजल्टेंट आर। चलो अच्छा, एक यहाँ पे शेयर एंगल था, एक यहाँ पे ये एक शेयर एंगल, सर्टेन एंगल पे ये हमारा ये था ऐसे, बोलो था, और ये हमारा ऐसा जा रहा था। 1 मिनट, ये हमारा शेयर एंगल था, ठीक है, ये हमारा है शेयर एंगल, राइट, ये है हमारा ये ऐसा। चलो, तो ये है हमारा शेयर एंगल। देखो यहाँ पे, तो ये एंड हो रहा है यहाँ पे ऐसे आके, तो यहाँ पे इसको मैं एरो इधर दिखा रहा हूँ, मैं बता दिया क्यों एरो मैं इधर दे रहा हूँ। ये एफ एस है और ये दिस इज योर एफ एन, राइट, और दिस वॉज योर thrust force ft, this is your cutting force. Now in this triangle if you see, I have assumed this as a, let me show you again, you can see here, this is your a b d, a b c d, right, a b c d, okay, a b c d, you can see here, this will be your a b c d, a b c d, right, and this angle was what, this angle was your phi, am I right, this angle was your phi. So now will you please tell me, if sir this angle is your phi and this is perpendicular, this is perpendicular because Fn and Fs is perpendicular to each other. So now this angle is your phi. So therefore this angle will be 90 minus phi. Is it right? 90 minus phi, then this angle will also 90 minus phi. And since this is 90, then it will become what? It will become phi. Therefore, this angle will also equal to phi. Remember this. This angle will always also equal to phi. So this is how we got. Now I am going to do a small construction. What is this construction? Suppose I am just drawing a line parallel to this. Parallel to BD, I am going to draw a line, right? Parallel to BD, I am going to draw a line. So whenever you draw a line parallel to BD, it will be like this. Suppose it will be, see, a line is drawn parallel to a new construction I am going to do. See, in this construction, a line parallel to BD, it will be like this. Right.
a line parallel to BD. And whenever you extend, it will be like this. It will meet here. Like this. Okay. Like this. So now in this, you can see this is your dotted line. This is the construction. Therefore, I am making it with a dotted line. New construction I have made. So maybe I am showing it with a different color so that it could be easy for you to understand. Sorry, I am showing you with a different color. Okay, new construction actually I have made. So it will be like this, suppose. Right. And this will be like this. It will be like this. Okay. See, this is your perpendicular like this. So therefore a perpendicular I have drawn here also. This is a perpendicular, right? A perpendicular is drawn here also. Then if you analyze this, you can see this is the extension. I have extended it parallelly, and here extended it's parallelly. So when this is parallel to this, ये वाला लाइन हमारा पैरेलल है इसके, और ये वाला इसके पैरेलल है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा. तो यहाँ पे हमारा सब एंगल 90 डिग्री आ गया. तो इसको नाम दे दो यहाँ पे ए बी, ये है सी, ये डी, इसको नाम दे दो ई. ठीक है, ये ई आ गया, इसको नाम दे दो एफ. अब तुम बताओ मुझे कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं कि हमें चाहिए क्या, ये ई है, ये ऐसा है, ये हमारा, तो ये ई बी है. तो ई बी और सी एफ क्या होगा, बराबर होगा. और बी एफ और सीई क्या होगा, बराबर होगा. तो फ्रॉम दिस कंस्ट्रक्शन वी हैव, फ्रॉम दिस कंस्ट्रक्शन क्या बोल सकते हैं, बताओ. बीई इज इक्वल्स टू सी एफ बोल सकते हैं, और सीई इज इक्वल्स टू बी एफ. तो ये दो रिजल्ट हमारे पास है. ठीक है, तो इसको इसके बराबर कर दो और इसको इसके बराबर कर दो. तो चलो, अब तुम मुझे बताओ तुम्हें लिखना है क्या. मान लो सपोज करो तुम्हें लिखना है ये देखो शियर फोर्स एफ एस. ये तुम्हारा एफ एस है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए. तो एक बात बताओ, इसमें अगर लिखेंगे एफ एस इज इक्वल्स टू एफ एस किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा. बताओ, ए बी वेक्टर के बराबर है. ए बी एफ एस है बिल्कुल. और ए बी को तुम क्या लिख सकते हो, बताओ. तुम बोलोगे सर ए बी को लिख सकते हैं हम लोग ए ई माइनस ई बी. ए ई माइनस ई बी, करेक्ट. ए ई माइनस ई बी है ना, ए ई माइनस ई बी. तो ये आ गया. और ई बी को लिख सकते हो क्या, ई बी को लिख सकते हो सी एफ. तो ये तुम्हारा आ जाएगा ए ई माइनस सी एफ, ए ई माइनस सी एफ. क्योंकि ईबी और बीई क्या है, बीई बराबर है सी एफ के. तो ये तुम्हारा आ गया. तो अब मुझे तुम ये बताओ कि इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे तो इन ट्रायंगल, टेल मी, इन ट्रायंगल यहाँ पे देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं. देखो इन ट्रायंगल, यहाँ पे तुम देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए, सॉरी, इन ट्रायंगल ए ई सी, राइट, ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी. ये बताओ साइन फाई क्या होगा, व्हाट इज साइन फाई. साइन फाई इज इक्वल्स टू सीई अपॉन सीई परपेंडिकुलर अपॉन ए सी, करेक्ट, ए सी. Then CE is equals to BF. So you can say sin phi is equals to, you can say sir sin phi is equals to CE. CE is equals to, sir, CE is equals to BF, right? This will be BF by, and AC is what?
AC is what? Tell me. AC is what? AC is your FC, that is the cutting force, right? It is your FC. So we can conclude, sir, BF is equals to FC sine phi. BF is equals to FC sine phi. Means BF is equals to FC sine phi. So what is BF? What is BF here? This line is BF. So BF is equals to FC sine phi. We have this. Okay. And BF is what? CE. So we want actually CE. So here BF or CE, you can conclude BF or CE. Right. So we have what? We want CF. We want CF, right? So we want actually CF. It is not required here right now. And AE we want. Therefore AE will be what? You can break the component of FC. अगर तुम FC का कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो तुम्हें आसानी से पता चल जाएगा. ठीक है. तो ये परपेंडिकुलर था, तो CE कितना आया तुम्हारा? CE आया FC sin phi. CE आया FC sin phi. तो इसका कंपोनेंट इधर ब्रेक करोगे तो ये क्या आएगा? AE क्या आएगा? FC cos phi. डायरेक्टली लिख दूं तो डायरेक्टली लिख सकते हो या ऐसा भी कर सकते हो. एक मैं दिखा दे रहा हूं, बाद में डायरेक्टली लिख दूंगा. ठीक है. तो इस ट्रायंगल में अगर तुम देखोगे इसे, देखो अब अगर तुम यहां पे करोगे, क्या नाम है, इसी ट्रायंगल में cos phi निकालो. cos phi क्या आएगा तुम्हारा? cos phi तुम्हारा आएगा AE by cos phi, AE by AC, राइट. और cos phi इज इक्वल्स टू AE by AC. क्या है? AE तो है कटिंग फोर्स. तो AE तुम्हारा आ जाएगा डायरेक्टली, AE आ जाएगा FC cos phi. तो डायरेक्ट कंपोनेंट ब्रेक करना ही सही रहेगा हमारे लिए. ये क्या आ गया? FC cos phi. कौन आ गया? AE. तो AE आ गया, ये वाला आ गया FC था, तो ये बेस के लॉन्ग कंपोनेंट ब्रेक किए तो cos phi, cos, और परपेंडिकुलर के लॉन्ग कर रहे हैं तो साइन. तो CE जो हमारा कितना आया था? CE आया था FC sin phi. तो ये डायरेक्ट याद रखो, कंपोनेंट ब्रेक किए, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किए यहाँ पे. ठीक है ना. एक लाइन ड्रॉ कर दिए यहाँ से इसके पैरेलल, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, बस. चलो, तो अब हमारे पास क्या आ गया? AE जो है, AE आ गया FC cos phi माइनस CF क्या आया था? CF. अच्छा, CF भी चाहिए हमें. CF मींस इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा हमें. किस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CFD, इन ट्रायंगल CFD. तो CF क्या है? परपेंडिकुलर है ना. तो CF परपेंडिकुलर है, तो CF कैसे निकालोगे? ये है तुम्हारा थ्रस्ट फोर्स. देखो यहाँ पे ये बड़ा वाला, ये तुम्हारा है थ्रस्ट फोर्स. ये तुम्हारा है थ्रस्ट फोर्स. देखो ये तुम्हारा है थ्रस्ट फोर्स. ये वाला है तुम्हारा थ्रस्ट फोर्स, है ना. ये थ्रस्ट फोर्स. तो थ्रस्ट फोर्स ये है, और इसका परपेंडिकुलर के लॉन्ग कंपोनेंट चाहिए. तो परपेंडिकुलर के लॉन्ग चाहिए, ये थीटा है, तो क्या हो जाएगा? FT sin phi. परपेंडिकुलर के लॉन्ग चाहिए ना, तो sin phi. और बेस के लॉन्ग चाहिए होगा तो cos phi. एकदम सिंपल है. तो डायरेक्ट लिख दूं? डायरेक्ट लिख दे रहा हूं. तो CF जो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा FT sin phi. उस तरह भी कर सकते हो, टाइम उतना क्यों वेस्ट करोगे? FT sin phi. क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए था. साइन में क्या आता है? P बाई. साइन फाई क्या होता है? P बाई H. परपेंडिकुलर आएगा ना, तो परपेंडिकुलर के लॉन्ग है, तो CF चाहिए, तो CF हो गया FT cos. ठीक है. FT cos, FT sin, सॉरी FT sin phi यहाँ पे. तो ये आ गया FT sin phi. तो मतलब हमारे पास ये आ गया दोस्त. क्या आ गया हमारे पास? जो पहला फॉर्मूला आ गया FS आ गया FC cos phi माइनस FT sin phi, माइनस FT sin phi. समझ में आया? तो ये आ गया हमारा पहला फॉर्मूला. मतलब अगर कटिंग फोर्स, इफ कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स इज गिवन एंड shear angle, then we can calculate this, right? Then we can calculate this. See, so FC cos phi minus FT sin phi, like this we can use this. Okay, so this is how we can do FC cos phi minus FT sin phi. तो इसको बॉक्स में घेर देते हैं. shear force formula, right? Okay, this is the formula number 1. Okay, now see formula number 2, how we can calculate. So we got this FS, we got this FS. Now we have to find this FN. This is FN.
Fn. Okay, this Fn is what? FC, Fs what? AE minus EB, and Fn is your BD. Fn is your BD. Okay, so write Fn is equals to BD. Fn is equals to BD. Fn is equals to BD. Correct. Okay, Fn is equals to BD, and BD is what? BD is BF plus FD. BF plus FD. Write it. BF plus FD. BF plus FD. Correct. BF plus FD. Okay, now tell me, what is BF? We have BF. See, BF is what? Here we in this figure, we say BF is FC sin phi. BF is FC sin phi. Directly write BF is FC sin phi. FC sin phi. Plus FD. See, FD is what? We have FD. See, FD is what? FT. FT, this is perpendicular, this is base. So for base, the cos will appear. Cos term आएगा हमारा. Okay. For FT, it will be FT cos phi. FT cos phi. FT cos phi. FT cos phi. Okay. FT cos phi. FT cos phi. Okay. तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखना. Fs और Fn का. Fn is FC sin phi plus FT cos phi. FC sin phi plus FT cos phi. दो फॉर्मूला आ गया. बोलो, दो फॉर्मूला आ गया. मतलब अगर सर क्या सीखे, अगर सर अगर FC और FT दिया हुआ होगा और फाई अगर नहीं दिया होगा तो निकाल लेंगे. किस फॉर्मूले से निकालेंगे? फाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा, है ना. तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे फाई और सवाल को सॉल्व कर लेंगे. FC cos phi माइनस FT sin phi. थ्रस्ट फोर्स और कटिंग फोर्स दिया रहेगा. तो एक तो चीज समझ में आ गया सर, ये समझ में आ गया एक चीज कि ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, FS और FN का. ये दो चीज समझ गए, कोई बात नहीं. अच्छा, दूसरा क्या है, अब हमें मतलब टोटल 6 फोर्सेस में FC और FT तो दिया हुआ रहेगा, तो FS और FN निकाल लिया हमने. Now our objective is to find out frictional force and normal force at the rake face with the help of cutting and thrust force. So now next figure we will draw. Similarly, just like this, we are going to draw another figure. In that figure, we will consider only the cutting force, thrust force, and the frictional force, and this normal force. We will not consider this. Okay. So now draw the next diagram. See, next diagram from this merchant circle. So here, in this, we will consider this only. Means ACDE. Okay. ACDE. Okay. ACDE. Okay. We are going to consider it. तो यहाँ पे देखो कंसीडर करने जा रहे हैं. दूसरा फोटो अच्छे से समझ लेना, ये डेरिवेशन है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में आता है डेरिवेशन, ये वाला. ठीक है. देखो, तो इसको समझना जरूरी है. ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारा टूल. तो ये टूल अगर हो गया तो अब इसको आगे बढ़ा दोगे तो कौन सा फोर्स आता था? बोलो, सबसे पहले इसको आगे बढ़ा दोगे तो कौन सा फोर्स आता था? कटिंग फोर्स आता था. कटिंग फोर्स की फ्रिक्शनल फोर्स सर. ठीक है, चलो ये फ्रिक्शनल फोर्स आ गया F. ये आ गया F. ओके, ये आ गया फ्रिक्शनल फोर्स F. ये आ गया फ्रिक्शनल फोर्स F. चलो, अच्छा, इसके परपेंडिकुलर ये एक यहाँ पे हमारा, इसके परपेंडिकुलर कौन आता था? एक इसके परपेंडिकुलर आता था हमारा नॉर्मल फोर्स N. आ गया. अच्छा, अब इसका आता था रिजल्टेंट यहां से R. आ गया. अच्छा, ये दोनों था हमारा परपेंडिकुलर, तो बना दो परपेंडिकुलर. अब यहाँ पे आता था इसके हॉरिजॉन्टली क्या आता था? कटिंग फोर्स आता था. बोलो, इसके हॉरिजॉन्टली आता था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करना है हमें. ठीक है. और इसके परपेंडिकुलर के बाद ये हमारा आता था एक कटिंग फोर्स. तो ये हमारा ड्रॉ हो गया ग्राफ.
तो ये वाला फोर्स था हमारा कटिंग फोर्स, और ये वाला था हमारा थ्रस्ट फोर्स। एनी प्रॉब्लम? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? प्लीज टेल मी, एनीवन, इफ एनीवन हैविंग प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, 1 minute. Okay, see now, so this is the diagram we have drawn. Now one more thing, this was your, see, this is your perpendicular, right? Sorry, this is not exactly perpendicular, so we can draw a perpendicular line like this. At this point, it will be like this, right? So what we can say, this angle we know, na? This angle we know, this angle was alpha, right? This angle was alpha. So when this angle was alpha, so this angle will also be alpha, and this angle, total angle, will be 90 minus alpha, right? Right? This angle will be alpha. This angle will be your alpha, correct? So I am denoting here this angle is as a alpha. So now we are doing a construction here. We are going to draw a line parallel to this. See, parallel to this normal, we are just going to draw a line parallel to this normal. Okay, parallel to this normal, we are going to, for this normal. So draw a line parallel to this normal. Whenever you draw a line parallel to this normal, it will be like this. Okay, it will be like this. Suppose I have drawn it like this. So whenever these two lines are parallel, this angle is 90 degree, this angle is 90 degree, then what, the distance remains constant. So therefore this is alpha, this is 90 minus, this will be 90 minus alpha, then this will be alpha. So here the angle will be alpha, right? Now draw a line, now you draw a line, one thing, now draw a line perpendicular from here. Now draw a line perpendicular from here like this. Small construction I am doing, a parallel to F, right? Now draw a line perpendicular to this F, friction. So now this is the line perpendicular to this friction. Okay, it will be, and this is your thrust force, correct? Now again a line parallel from here, parallel to this, will be like this. So this is a new construction which I have made here. What I have done, I have drawn a line parallel to this C. I have drawn a line parallel to this N here, and a line drawn parallel to this frictional force, and again here this parallel line, and this will be your perpendicular like this, like this. Okay, now draw, now name it. The naming was A. See the naming here. It is what? देखो, A C D E, A C D E, A C D E, A C D E. नेमिंग कर दो, A C D E, राइट? अब इसको नाम दे दो F, इसको नाम दे दो G, इसको नाम दे दो H, ठीक है? तो अब यहाँ पे तुम्हें रिलेशन निकालना है, कुछ नहीं करना है। देखो ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री था ऑलरेडी, तभी ये अल्फा आया हमारे पास। तो अब तुम्हें चाहिए F। तो एक बात बताओ, ये जो F है, ये दोनों बराबर होगा ना? ये एक रेक्टेंगल नहीं फॉर्म हो गया हमारा, एक रेक्टेंगल बन गया। ये देखो सब एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री है ना? और ये वाला सामने वाला इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है? तो तुम्हारा AE जो है ये बराबर हो गया FD के, ठीक है? चलो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि A फ्रिक्शन हमें निकालना था पहले। तो तुम अब बोलोगे कि सर फ्रिक्शन फोर्स जो है आपका ये बराबर है किसके? फ्रिक्शन फोर्स है AB। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, फ्रिक्शनल फोर्स है AB, AE, सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स है AE, फ्रिक्शन फोर्स है AE, है ना? और सर ये जो AE है ये बराबर है FD के, AE बराबर है FD के, बिल्कुल सही। तो AE बराबर हो गया FD के, सही। अच्छा FD जो है ये बराबर है सर
FH प्लस HD के, बोलूंगा ये भी सही। अच्छा, FH सर बराबर है, FH बराबर है CG के, FH बराबर है CG के, तो CG प्लस HD, CG प्लस HD, CG प्लस HD। तो अब बताओ मुझे CG क्या होगा, खुद सोचो। CG, ये CG है, तो अब तुम देखो इस ट्रायंगल में CGA, इस ट्रायंगल में देखो CGA, इस ट्रायंगल में अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा अल्फा है, ये 90 डिग्री, मतलब ये हाइपोटेनस है ना, ये तुम्हारा 90 ये है ना, तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना। तो तुम्हें चाहिए, तुम्हें CG निकालना, मतलब ये परपेंडिकुलर है ना, मतलब साइन आएगा। तो किससे निकालते हैं? FC से, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, ये क्या हो जाएगा? FC साइन अल्फा। CG निकालना है FC साइन अल्फा, और GA निकालना होगा तो FG कॉस अल्फा, FC कॉस अल्फा। तो CG हो जाएगा FC साइन अल्फा, FC साइन अल्फा, FC साइन अल्फा प्लस, अब आ जाओ HD में, ये HD है। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इस एंगल को पता करना होगा, देखो गौर से देखना, गौर से देखो, ये एंगल है, ये एंगल अल्फा, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस अल्फा, बोलो होगा 90 माइनस अल्फा होगा। तो ये एंगल भी क्या होगा? 90 माइनस अल्फा होगा। तो ये एंगल अगर 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 है तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, है ना, ये 90 माइनस अल्फा होगा। तो ये फिर क्या हो जाएगा, बोलो, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये अल्फा, ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारा अल्फा होगा, इसको याद रखना, ध्यान में रखना। ये वाला भी एंगल कैसे समझ में आया, कैसे किया, देखो फिर समझ लो, जो नहीं समझा फिर समझो, कुछ नहीं, बकवास की बात है। ये अल्फा, ये 90, तो सर ये 90 माइनस अल्फा होगा, होगा 90 माइनस अल्फा। तो ये वाला भी एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, होगा ना 90 माइनस अल्फा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। तो ये जैसे ही अल्फा हो जाएगा तो ये टोटल एंगल 90 है, टोटल एंगल 90 है, तो ये वाला जैसे ही अल्फा हो गया तो ये वाला फिर बचा हुआ क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। तो ये जैसे ही अल्फा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, किसी को कंफ्यूजन अगर है तो यहाँ पे ये वाला भी एंगल हमारा अल्फा ही होगा, ये वाला भी एंगल अल्फा होगा। क्यों होगा समझ जाना, ये होगा 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी अल्फा। पिक्चर क्लियर? चलो, तो ये हमारा आ गया अल्फा। तो जैसे ही अल्फा आ गया तो अब बताओ, ये अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये हो गया बेस। ठीक है, तो चाहिए DH, तो DH पे क्या आएगा? कॉस, तो DH है तो कॉस आएगा, HD, तो कॉस किसका? कॉस इसका, हाइपोटेनस का, मतलब FT कॉस अल्फा। तो ये आ जाएगा FT कॉस अल्फा, FT कॉस अल्फा, बोलो आ जाएगा FT कॉस अल्फा। और किसी को नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है कंपोनेंट कैसे ब्रेक करें, तो भाई तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा लेना, इसमें कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, cos अल्फा इज इक्वल्स टू DH अपॉन CD, CD की वैल्यू है FT, तो DH अपॉन FT, इस तरह निकाल सकते हो FT cos अल्फा, है ना। ज्यादा टाइम है तो इस तरह कर लेना। तो ये हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, ये आ गया FC साइन अल्फा प्लस FT cos अल्फा प्लस FT cos अल्फा। समझ में आया सबको, एवरीवन? तो ये इसको याद रखेंगे, FC साइन अल्फा प्लस FT cos अल्फा, we should remember, we should learn this, okay? FC sin अल्फा प्लस FT cos अल्फा, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। चलो, थर्ड फॉर्मूला हो गया फ्रिक्शनल फोर्स का। चलो फोर्थ में आते हैं। तो फ्रिक्शन तो आ गया, अब चाहिए था ये नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए कंस्ट्रक्शन किए थे, ये वाला किया था ना कंस्ट्रक्शन। तो नॉर्मल बराबर है किसके? AF के। तो नॉर्मल जो हो गया, पहले तो ED के बराबर हो गया, और ED बराबर हो गया किसके? AF के। ED इज इक्वल्स टू AF, और AF क्या हो जाएगा? AG, टोटल AG माइनस FG, तो AG माइनस FG। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे देखो, तो हमारा जो नॉर्मल फोर्स है N, ये हो जाएगा हमारा, इसके बराबर हो जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल DE के। ठीक है, और DE सर आपने बताया कि DE बराबर होगा AF के, DE बराबर AF, DE बराबर हो जाएगा AF के, और AF को लिख सकते हैं AG माइनस GF, AG माइनस GF। देख लो, AF को AF, AF AG माइनस GF। ठीक है, अच्छा GF जो होगा वो बराबर होगा CH के, GH जो होगा ये बराबर होगा CH के, तो GF इज इक्वल्स टू CH।
तो GF is equals to CH, तो it will be AG minus CH. कोई प्रॉब्लम? AG minus CH, AG minus CH. चलो, दिस विल बी AG minus CH. अब आ जाओ इसमें, AG क्या होगा बताओ? AG, AG, AG ये पूरा, ये क्या है? कटिंग फोर्स है, कटिंग फोर्स है, और ये अल्फा है. तो ये बताओ, ये अल्फा है, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, AG हो गया बेस. तो AG में क्या आएगा? कॉस, मतलब FC कॉस अल्फा, FC कॉस अल्फा. ये आएगा FC कॉस अल्फा माइनस CH क्या पे है? CH ये है सर, और ये है FT. तो CH क्या हो गया? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब साइन, मतलब FT साइन अल्फा, FT साइन अल्फा. ये आ गया FT साइन अल्फा. ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया n इज इक्वल्स टू FC कॉस अल्फा. चारों फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया. FC कॉस अल्फा, FT साइन अल्फा, FC कॉस अल्फा, FT साइन अल्फा, FC कॉस अल्फा, FT साइन अल्फा. चलो, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन बार बार तुम नहीं करोगे. ये बार बार तुम नहीं करोगे एग्जाम में, इसको बार बार नहीं करना. ये कन्वेंशनल एग्जाम के लिए, कन्वेंशनल में ये फिगर तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. तो जो भी कंस्ट्रक्शन किया हूं मैं उसको दूसरे कलर से दिखाया हूं. ठीक है, तो इजिली हमारा ये बन जाएगा. तो अब इस चारों फॉर्मूले को याद कैसे रखा जाए भाई? एक तो पहला आया FS, दूसरा आया FN है ना, FC cos फाई आया ना, और तीसरा आया हमारा F, और चौथा आया हमारा N. तो देखो, इसको याद रखने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें. इसको याद रखना, जब भी प्रॉब्लम हो इसको याद रखना. ट्रिक क्या है इसको याद रखने का? हाउ टू मेमोराइज दिस शॉर्ट ट्रिक. शॉर्ट ट्रिक देखो, पहले इसको सीक्वेंस में लिख लो. ऐसे कैसे लिखना है इसको? ऐसे F N FN FS, इस सीक्वेंस में लिखना होगा. F N FN FS, यही सीक्वेंस हो जाए. F N FN FS, F N FN FS. F is the frictional force at the rake face, N is the normal force at the rake face, Fn is the normal force at the shear plane, and Fs is the shear force at the shear plane. Okay, F N F N F S. और तुम्हें क्या दिया रहा था? सबसे पहले आएगा कटिंग फोर्स, FC 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 FC, सब में आएगा FC पहले, सब में आएगा FC पहले, उसके बाद आएगा FT, उसके बाद आएगा हमारा FT FT FT, कटिंग फोर्स पहले आएगा. ठीक है, अब देखो स्टार्ट एक तुम्हें याद रखना पड़ेगा, फ्रिक्शन. तो यहाँ पे C आ रहा है ना, तो C आ रहा है तो ये साइन से स्टार्ट होगा. तो C आ रहा है तो कॉस से नहीं, उल्टा FC साइन अल्फा. अल्फा क्यों आ रहा है बता रहे हैं, ये आएगा. जैसे ही लिख दिए FC साइन अल्फा, तो अब ये साइन यहां लिखा गया, तो यहाँ पे कॉस, FC कॉस, FT कॉस अल्फा. पहले एक चीज देखो, ये बताओ मुझे कि ये दोनों फ्रिक्शनल और नॉर्मल, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों कहां पे आता है? रेक फेस पे ना. फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों आता है रेक फेस पे, तो रेक एंगल आएगा इसमें. देखो, फ्रिक्शन किसके आ रहा है? पैरेलल. फ्रिक्शन आ रहा है किसके पैरेलल? रेक फेस के. ये रेक फेस है, तो हमेशा फ्रिक्शन और नॉर्मल में आएगा अल्फा, रेक एंगल. अच्छा, ये देखो, ये तुम्हारा शेयर प्लेन था FS और FN. तो FS और FN हमेशा लगता है शेयर प्लेन पे, तो शेयर प्लेन पे लगेगा तो हमेशा शेयर एंगल आएगा फाई. हमेशा क्या आएगा? शेयर एंगल आएगा इसके कैलकुलेशन में. तो यहाँ पे देखो, तो याद रखने के लिए क्या हो गया जुगाड़? F और N में कौन सा एंगल आएगा? अल्फा, क्योंकि रेक फेस पे आता है. और FN और FS में कौन सा एंगल आएगा? फाई. तो F और N में आएगा अल्फा, और FN में आएगा फाई. तो एक याद रखना है, FC साइन अल्फा प्लस FT कॉस अल्फा. एक पहला वाला FC साइन अल्फा, FT कॉस अल्फा. अब क्या करो, इस कॉस अल्फा को यहां ले आओ, साइन अल्फा को इधर ले जाओ. इस वाले को FC कॉस अल्फा बस माइनस साइन, माइनस FT साइन अल्फा. ठीक है, फिर अब FN लिखना है तो इसी की तरह लिखेंगे. कैसे? देखो, FC था, अब फिर साइन लिखेंगे, लेकिन पहला वाला फाई एंगल आ जाएगा. FC साइन फाई प्लस FT कॉस फाई प्लस FT कॉस फाई प्लस FT कॉस फाई. ठीक है, कॉस फाई. तो FC साइन फाई. अब सिर्फ FS लिखना है, तो कॉस इधर आएगा, साइन इधर जाएगा, बीच में माइनस साइन. FC कॉस फाई माइनस FT साइन फाई. बहुत सिंपल है. एक याद रखना है बस, फ्रिक्शन. पहला याद रखना है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या होता है? कटिंग फोर्स FC
तो सी आएगा तो पहले कॉस नहीं आएगा, साइन आएगा, उल्टा आता है, एफ सी पहले साइन आएगा, तो एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा, एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा। तो एफ लिख लिए, एफ एफ एन एन लिखना है तो एफ सी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर एफ एन लिखना है तो एफ सी साइन फाइव प्लस एफ टी कॉस फाइव, एफ एस लिखना है तो कॉस फाइव इधर आ जाएगा माइनस साइन फाइव इधर चला जाएगा। कुछ लड़के बोलते हैं सर पहला वाला लिख के डिफरेंशिएट कर देंगे दूसरा वाला आ जाएगा, ये भी सही है। तो पहला लिख लिए एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा, इसको डिफरेंशिएट करो, एफ सी साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा। तो तुम डिफरेंशिएट करके भी देख लो तब भी आ जाएगा, जैसे करना वैसे करो, लेकिन ये चारों फॉर्मूला याद रहना चाहिए। नहीं याद है एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा दोस्त, नहीं याद है एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ठीक है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एकदम याद रखना है, मस्ट है, याद तो सब रखना है लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको छोड़ना ही नहीं है वो है ये, वो है ये एफ एस। क्यों एफ एस इंपॉर्टेंट है कि एफ एस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एफ एस जैसे ही हमको पता चलता है तो हम टाउ निकाल सकते हैं, मटेरियल का अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ हम लोग पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एफ एस का एक और फॉर्मूला होता है विद द हेल्प ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी। क्या होता है एफ एस का फॉर्मूला, कोई बता सकता है? टाउ बीटी साइन फाई। देखो शियर फोर्स में पढ़ाया था पहले, शियर फोर्स यहाँ पे मैं लिखाऊंगा कहीं पे, देखो यार मैंने पढ़ाया था, यहाँ देखो मैं क्या पढ़ाया था, टाउ इज द अल्टीमेट शियर स्ट्रेस ऑफ द वर्क मटेरियल। पहला लेक्चर, जिस जो नहीं देखा है ये वाला लेक्चर वो सबसे पहले इससे पहले वाला लेक्चर जाके देखे तभी इस लेक्चर को देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये टाउ शियर स्ट्रेस क्या था, शियर फोर्स बाय शियर एरिया, शियर फोर्स एफ एस, शियर एरिया था बीटी बाई साइन फाइव, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा टाउ बीटी बाई साइन फाइव शियर फोर्स। तो इसको इक्वेट कर दोगे उस शियर फोर्स से तो तुम्हारा टाउ निकल जाएगा, बीटी दिया रहेगा साइन फाइव दिया रहेगा, ठीक है। तो शियर फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एफ टाउ बीटी बाई साइन फाइव, ये बहुत इक्वेट होता है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आता है इस पे। तो ये हो जाएगा हमारा टाउ बीटी बाई साइन फाइव is equals to fs is equals to fc cos phi minus ft sin phi, ठीक है। तो इसे हम लोग को इक्वेट करने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो पिक्चर क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया कैसे निकालेंगे शेयर फोर्स एफ सी कॉस फाइव माइनस एफ टी, ये याद रहना चाहिए। कमेंट बॉक्स में एकदम लिख के दिखाना मुझे कि सर मुझे याद है, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी ऐड कर लो, टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा नंबर है, इस पे मैसेज करो 8527014884, ठीक है। तो इस पे मैसेज करो और मैं तुम्हें बताऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और कमेंट बॉक्स में जो भी लेक्चर पे प्रॉब्लम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूछो, मैं उसे बताऊंगा, ठीक है। और 1 सितंबर से मैन्युफैक्चरिंग का एक बैच स्टार्ट हो रहा है, वो बैच आप लोग ज्वाइन कीजिए, जूम पे ज्वाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, अभी उसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है, ये तो हम लोग चारों फोर्स निकालना सीख गए। अब ये फोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है सर? सर ये फोर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ताकि so that we can calculate the power consumption whenever a chip flow over the rake face, because in form of heat, in the form of heats there will be some energy dissipation takes place near the rake surface. By that, after taking the that amount of heat, the temperature of the tool get increased, so we have to calculate the power consumption and the power analysis in the orthogonal machining operation, right? So now see the power analysis in the orthogonal machining operation. Okay, fc sin alpha plus ft cos alpha, fc cos alpha minus ft sin alpha, fc sin phi plus ft cos phi minus fc cos phi minus ft sin phi, ये याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ सी द पावर एनालिसिस, पावर एनालिसिस इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग, पावर एनालिसिस, power analysis in orthogonal machining. Okay, so what is, how many kind of power, what is power? Power is the dot product of what? Force and velocity. Okay, so we have here, first is our cutting power, that is called total power, that is the power required to do the cutting operation, right? So whenever you see, I am showing you the diagram here, so this, in this diagram, see,
in this diagram we have this was our tool, right? And this is the chip is flowing like this. The chip is flowing like this. Okay, now see here, this was your cutting force, right? In this direction we have the cutting force, correct? And the chip is also moving with the some velocity. Sorry, the tool is moving toward the uncut portion. You can see this is your tool, this is your chip, this is your rake face, right? This is your rake face, and this is your tool, right? This is your workpiece, uncut chip, workpiece, machined surface. I'm not going to define all these things here. Okay, this is your cutting force, and the direction of cutting velocity will be also in this direction. It will be your VC in this direction, right? This will be your cutting velocity V. So here the direction of cutting force and cutting velocity coincides, means you can directly write the equation of power as cutting force into cutting velocity, because the dot product, the angle between these two is 0, therefore cos 0 will be 1. Okay, now next was here the shear plane, right? Now here one plane is a shear plane, and we have seen that on this plane, this was your, you can see this was your cutting velocity, right? This was your shear velocity. This was your shear force, right? Fs. And this was your shear velocity, like this, parallelly like this. To shear off, it will be loss, because यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा shear force होगा उसकी वजह से ये एनर्जी हमारा कंजम्पशन होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा एनर्जी कंजम्पशन होगा, तो इस पॉइंट पे एनर्जी कंजम्पशन होगा, और ये था हमारा shear velocity Vs था। तो ये एंगल क्या है, दोनों अपोजिट एंगल में है, मतलब 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, दैट इज -1। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें डायरेक्शन से मतलब है नहीं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, और ये स्केलर क्वांटिटी है पावर, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है? और आगे आप देखोगे यहाँ पे, तो ये आपका जा रहा था यहाँ पे कौन, ये था आपका चिप, ये आपका जा रहा है चिप, तो यहाँ पे ये आपका फ्लो कर रहा था चिप, देखो ये था चिप वीसी वेलोसिटी से, और इसको अपोज करने के लिए कौन आ रहा था यहाँ पे, इस प्लेन पे फ्रिक्शन आ रहा था। ध्यान से देखना, इस प्लेन पे तुम्हारा आ रहा था फ्रिक्शन फोर्स, बोलो आ रहा था, तो इस फोर्स पे इस पे आ रहा था हमारा फ्रिक्शन फोर्स। तो अब तुम देखोगे अगर पावर को सारे, तो ये इस फोर्स को, ये यहाँ पे एक लॉस होगा, जो हमारा निगेटिव साइन में, मतलब एंगल हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, निगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये लॉस होगा फ्रिक्शनल पावर का लॉस होगा रेक फेस पे हमारा। तो हम अब सारे पावर को अगर तुम देखोगे यहाँ पे 1 by 1, तो जो पहला पावर जो हमारा, जिसको बोलते हैं टोटल पावर, कटिंग पावर, तो देखो सबसे पहला था हमारा टोटल पावर, जो स्टार्टिंग में था टोटल पावर, तो टोटल पावर का ही नाम है हमारा कटिंग पावर, जो हमने इनिशियली यूज किया था, कटिंग पावर। मतलब ये जो है हमारा, जो कटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो टोटल पावर था, कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं टोटल पावर, कुछ ऑथर इसको ऐसे भी लिखते हैं कटिंग पावर। तो कटिंग पावर होगा क्या, डायरेक्टली कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी, cos 0 1 हो जाएगा, तो कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी, ये होता है हमारा टोटल पावर, ठीक है? अब ये टोटल पावर, तो ये हो गया हमारा, दूसरा हमारा आ गया, यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो shear पावर कंजम्पशन, shear पावर कंजम्पशन, मतलब shear प्लेन पे कितना पावर का कंजम्पशन हो रहा है, तो ये आएगा shear पावर कंजम्पशन, इसको आप लिख सकते हैं S.T, shear पावर कंजम्पशन, और कुछ ऑथर इसको PS भी लिखते हैं, shear पावर कंजम्पशन। तो ये हो जाएगा हमारा shear फोर्स इनटू shear वेलोसिटी, shear फोर्स इनटू shear वेलोसिटी, डायरेक्टली हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है? थर्ड हमारा आ जाएगा फ्रिक्शनल पावर लॉस, ये तो लॉस होगा, shear वाला तो यूज होगा, क्योंकि वो अनकट चिप को चिप में बदलेगा, डिफॉर्मेशन होगा वहां पे, तो shear पावर लॉस, shear पावर लॉस इन टर्म्स ऑफ हीट, ओके? तो shear पावर लॉस जो हमारा होगा, फ्रिक्शनल पावर लॉस FP,
और इसको आप फ्रिक्शनल पावर पीएफ भी बोल सकते हैं। तो ये होगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू चिप वेलोसिटी। याद रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू चिप वेलोसिटी, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू चिप वेलोसिटी। तो ये जो है इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो ये है आपका कटिंग पावर, ठीक है। तो कटिंग पावर आपका आ गया, ये आ गया आपका कटिंग पावर। अच्छा, ये है आपका शेयर पावर, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है आपका कटिंग पावर, ठीक है, शेयर पावर सॉरी, और ये है आपका फ्रिक्शनल पावर लॉस। तो जो भी आप इनिशियली पावर सप्लाई करते हो, देखो कटिंग पावर, तो जो भी आप इनिशियली पावर जो सप्लाई आप करते हो, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है हमारा। एक मटेरियल को शेयर ऑफ करने में, और दूसरा फ्रिक्शन को ओवरकम करने में यूज हो जाता है, जो भी आप इनिशियल जो एनर्जी सप्लाई करते हो कटिंग फोर्स के थ्रू, ठीक है। किसमें यूज होता है? एक शेयर प्लेन पे, मतलब कटिंग करने में, यहाँ पे मटेरियल को शेयर ऑफ करने में, ये चिप में कन्वर्ट करने में यूज होता है, और दूसरा फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। तो इसका मतलब जो टोटल पावर हमने दिया है, ये समेशन होता है शेयर पावर कंजम्पशन प्लस फ्रिक्शनल पावर लॉस का। तो आप लिखोगे यहाँ पे व्हाट वी एनालाइज दैट total power is equals to shear power plus frictional power. Remember this, frictional power means cutting power is equals to shear power, is equals to shear power plus frictional power, plus frictional power, okay। तो ये हमारा कटिंग पावर क्या होगा? कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी। देखो यहाँ पे सी नहीं है, सब सब बेकार हो जाएगा, इधर उधर एक्स्ट्रा सी लिख दिए, सब बेकार हो जाएगा। कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी। आई इन माय कन्वेंशन आई हैव अज्यूम्ड कैपिटल V as a cutting velocity and VC as a chip velocity, okay। तो shear power is shear force into shear velocity plus frictional power loss, frictional force into chip velocity, frictional force into chip velocity. So this result is very important, you should remember this, right। अब कभी कभी गेट में या इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपसे क्या पूछेगा, बोलेगा बताओ परसेंटेज फ्रिक्शनल पावर लॉस, मतलब कितना परसेंट लॉस हुआ। तो जितना परसेंट सप्लाई किए वो पहले बताइए। तो सप्लाई कितना करते हैं? कटिंग पावर के इतना सप्लाई करते हैं। तो परसेंटेज फ्रिक्शनल पावर लॉस कैसे निकालोगे? परसेंटेज फ्रिक्शनल पावर लॉस, परसेंटेज फ्रिक्शनल पावर लॉस, तो ये तुम्हारा हो जाएगा परसेंटेज फ्रिक्शनल पावर लॉस हो जाएगा फ्रिक्शनल पावर अपॉन टोटल पावर, यही होगा ना, इनटू 100, यही हो गया परसेंटेज। तो तुम्हारा फ्रिक्शनल पावर, तुम बोलोगे सर फ्रिक्शनल पावर था फ्रिक्शनल फोर्स इनटू चिप वेलोसिटी, बिल्कुल सही। कटिंग टोटल पावर है कटिंग फोर्स इनटू V इनटू 100, बोलो यही है ना, कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी। और VC बाई V क्या होता है? VC बाई V पढ़ाए हैं, स्मॉल r इज इक्वल्स टू T बाई TC इज इक्वल्स टू VC बाई V इज इक्वल्स टू LC बाई L इज इक्वल्स टू पाई DC बाई D, पाई D है ना, इज इक्वल्स टू कुछ पढ़ा है ना, साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा, पढ़ा है ना। तो ये हमारा इस तरह का हमारा ऐसा आएगा, ठीक है। तो VC बाई V क्या होता है? चिप थिकनेस रेशियो। तो ये हमारा जो परसेंटेज फ्रिक्शनल पावर लॉस है, तो परसेंटेज फ्रिक्शनल पावर लॉस ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा F बाई FC इंटू R इंटू 100, करेक्ट, इंटू 100 इंटू स्मॉल r चिप थिकनेस रेशियो इंटू 100, ओके, समझ में आया? इंटू 100 इंटू 100, पेंसिल लग रहा है मेरा डिस्चार्ज हो गया है, 1 मिनट, इंटू 100, ओके। देखो इंटू 100, तो ये आ गया हमारा परसेंटेज फ्रिक्शनल पावर लॉस। तो इसको याद रखेंगे, परसेंटेज फ्रिक्शनल पावर लॉस का फॉर्मूला तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कटिंग पावर निकालो तो फ्रिक्शनल पावर निकालो, ये कर दो, ठीक है। अच्छा, अब परसेंटेज शेयर पावर लॉस अगर बोलेगा कोई निकालने के लिए, तो परसेंटेज शेयर पावर लॉस,
percentage shear power consumption, actually it is percentage shear power consumption. तो ये हो जाएगा हमारा सर shear power by total power into 100. shear power क्या आएगा? shear power आएगा सर shear force into shear velocity. shear force into shear velocity upon cutting force into cutting velocity into 100. लेकिन हम लोग ये जो है परसेंटेज shear power consumption, लेकिन अपन vs by v को कुछ नहीं लिख सकते हैं, vs by v को कुछ नहीं लिख सकते हैं. इसके लिए वेलोसिटी ट्रायंगल में जाना पड़ेगा. shear velocity कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी ट्रायंगल. ओके, वेलोसिटी ट्रायंगल की मदद से vs by v का रिलेशन हमें मिलेगा. और fs कैसे निकालेंगे? fs निकालेंगे वो fn fn fs वाले फॉर्मूला से, fn fn fs वाले फॉर्मूला से निकालेंगे. और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे सर? वही fn fn fs वाले फॉर्मूला से. ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो क्या था फॉर्मूला? अभी पढ़े हो, fc sin अल्फा प्लस ft cos अल्फा प्लस ft cos अल्फा. तो इस फॉर्मूले से, सॉरी यहाँ पे देखो, ये इस फॉर्मूले से fc sin अल्फा प्लस ft cos अल्फा, इससे ये फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे, है ना. r चिप थिकनेस रेशियो दिया रहेगा या vc by v. अब vc by v, यहाँ पे fs कैसे निकालेंगे? मुझे तो सब याद है, आप भी याद कर सकते हो. fc cos फाई माइनस ft sin फाई. तो इससे fs निकाल लेंगे, shear फोर्स. shear फोर्स लास्ट में था fn fn fs, fn fn fs. f में fc sin अल्फा, अल्फा आएगा एंगल, प्लस ft cos अल्फा. अब इसमें क्या, cos अल्फा इधर आ जाएगा, fc cos अल्फा माइनस ft sin अल्फा. तो इसी तरह करके याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं. लेकिन इस shear वेलोसिटी निकालना यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा. उसके लिए वेलोसिटी ट्रायंगल में जाना पड़ेगा. मैं बना दे रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट अगर भूल गए होंगे कि वेलोसिटी ट्रायंगल सर याद नहीं आ रहा है, एक बार बता दो. कुछ नहीं, एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे करके, तो ये बन जाएगा एक ट्रायंगल. ठीक है, ये बन गया एक ट्रायंगल. अब इस ट्रायंगल में नाम दे दो जल्दी जल्दी. तो सबसे हॉरिजॉन्टल में था कटिंग वेलोसिटी, ये था हमारा चिप वेलोसिटी, और ये था हमारा shear वेलोसिटी. ये था हमारा shear वेलोसिटी. तो ये shear वेलोसिटी था, तो ये हमारा क्या नाम है, एंगल ये था shear एंगल फाई, ये था 90 माइनस अल्फा, और ये था 90 माइनस फाई माइनस अल्फा. ये ना. तो अब जैसे v अपॉन साइन 90 माइनस फाइव माइनस अल्फा, साइन रूल लगा देना. ये क्या था, vc अपॉन साइन फाइव, ये vs अपॉन कॉस अल्फा, है ना. चलो लिख भी देता हूँ, कुछ लोग रो रहे हैं, लिख देता हूँ. ये क्या हो जाएगा, v अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा कॉस फाइव माइनस अल्फा. बोलो हो जाएगा. चलो v अपॉन कॉस फाइव माइनस अल्फा. अच्छा, vs अपॉन क्या हो जाएगा, vs अपॉन भी कॉस हो जाएगा, कॉस 90 मतलब कॉस अल्फा. अच्छा, vc अपॉन साइन फाइव आ गया ये. अब तुम फाई निकला रहेगा, अल्फा दिया हुआ रहेगा, फाई दिया हुआ रहेगा, तुम्हें चाहिए क्या, vs बाई v. तो vs बाई v यहां से निकाल लो, vs बाई v. तो तुम्हारा आ जाएगा vs बाई v इज इक्वल्स टू, समझना अच्छे से, vs बाई v आ जाएगा cos अल्फा अपॉन cos फाइव माइनस अल्फा. तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको यूज करोगे. याद वाद मत करो, इस सबको याद करने से कोई फायदा नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, एग्जाम में निकाल लोगे आराम से. याद करने के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. जहाँ पे याद करना है मैं खुद बोलूंगा याद कर लो, जहाँ पे कोई जरूरत नहीं वहां पे मत याद करो. ठीक है, तो ये हमारा आ गया परसेंटेज फ्रिक्शनल पावर लॉस, परसेंटेज shear पावर कंजम्पशन. और एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि दो ही जगह ये बट रहा है, बाइनरी है ना, दो ही जगह. ये जो टोटल पावर था, ये एक जगह, इसको बोलते हैं प्राइमरी पावर कंजम्पशन, ज्यादा ये होता है. उसके बाद ये सेकेंडरी पावर कंजम्पशन. तो ये हमारा प्राइमरी shear जोन है, प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन है, ये हमारा सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन है. तो जो टोटल पावर है ये दो जगह डिवाइड हो रहा है, मतलब परसेंटेज shear पावर लॉस कंजम्पशन प्लस परसेंटेज फ्रिक्शनल पावर कंजम्पशन, इसका सम क्या होता है, 100% होता है. तो ये थोड़ा सा इसमें याद रखेंगे यहाँ पे. ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि सर परसेंटेज shear पावर कंजम्पशन प्लस परसेंटेज फ्रिक्शनल पावर लॉस, ये टोटल क्या होता है दोस्त, 100% होता है. इसको याद रखना. मतलब सर ये तो एक बहुत अच्छी बात बता दी है, अगर हम परसेंटेज फ्रिक्शनल पावर लॉस निकाल लेंगे
तो 100 में से अगर घटा देंगे, इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो परसेंटेज शेयर पावर कंजम्पशन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। दोनों निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप बिल्कुल वैसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो इसको आप याद रखिएगा, पावर एनालिसिस गेट में, ईएस में हर जगह इससे क्वेश्चन आता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पावर एनालिसिस ऑर्थोगोनल मशीनिंग का कैसे निकालते हैं, कौन कौन तरह का पावर होता है, फ्रिक्शनल पावर क्या होता है, शियर पावर क्या होता है, शियर वेलोसिटी क्या होता है, टोटल पावर क्या होता है, कटिंग पावर क्या होता है। और यही हमारा कटिंग पावर था, FC × V। इसी को हम लोग मिनिमम किए थे इससे पहले लेक्चर में। जो हमारा ये रिजल्ट आया था, आप देखिए, ये जो रिजल्ट सब आया था मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन के लिए, ये वही रिजल्ट सब आया था हमारा। कटिंग पावर को मिनिमम करे थे अर्नेस्ट एंड मर्चेंट, तो मिनिमम कटिंग पावर कंजम्पशन। तो ये देखो यहाँ पे यही था ना, कटिंग पावर FC × V। और FC का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये इसरो में आया था। तो इसको दोस्त याद रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही मजेदार चीज है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट यू गाइज हैव रियली एंजॉयड दिस लेक्चर। और आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो आप जरूर पूछिए, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आप जरूर पूछिए, ठीक है। और आप इस चैनल को, अभी तक जिस स्टूडेंट्स ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को अपने दोस्तों में नहीं शेयर किया, लाइक नहीं किया, प्लीज आप इसको जरूर लाइक कीजिए। अगला वीडियो देखने से पहले प्लीज लाइक कीजिए। और आपको सारा का सारा वीडियो सीक्वेंस में डाला हुआ है प्ले लिस्ट में, आप उसको जाके देखिए। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, न्यूली एडेड टॉपिक का एक है आपको मशीनिंग का है, कन्वेंशनल मशीनिंग, अनकन्वेंशनल मशीनिंग का है, एक अभी RAC का भी इसमें एक अपलोड होगा, रेफ्रिजरेशन का, थर्मोडायनेमिक्स का। तो सबका एक मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। और आपको 1 महीने के अंदर में एक प्रॉपर इस पे एक ये मिल जाएगा कि बाकी आपको कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं फीस देने की आपको जरूरत नहीं है। आप इस पे प्लेलिस्ट पे आराम से जाके आप पढ़ सकते हो, सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और ये मैंने अभी पढ़ा तो दिया है, अब इस पे प्रॉब्लम कराऊंगा अगले वीडियो में। सारा क्वेश्चन ES का गेट का होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को करने के बाद टेस्ट सीरीज दे सकते हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, ओके। थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन, बाय, सी यू।